الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال الله تبارك وتعالى: والنجم إذا غوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد للہ رب العالمین. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیو، قرآن مقدس کی الگ الگ سورتوں کی ابتدائی آیات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ النجم کی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس دعائیہ مضمون آپ حضرات کی خدمت میں پڑھ کر سنایا ہے. سن ہجری 1447 اسلامی سال کا 4 اشہر حرم میں کا حرمت اور عزت والا مہینہ رجب المرجب، آج اس کی 26 تاریخ. آنے والی رات 27ویں رات شمار ہوتی ہے، جن کو بڑی راتوں میں شمار کیا جاتا ہے. رجب المرجب کی 27ویں رات، مہینہ بھی بڑا مبارک ہے. اللہ تعالیٰ شانہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 تو پے در پہ ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. 4 اشہر حرم قرار دیے گئے. اشہر حرم کا مطلب یہ ہے ان مہینوں کی زمانہ جاہلیت میں مکہ کے مشرک بت پوجنے کے باوجود عزت کرتے تھے. ان کی زندگی حالت شرک اور کفر میں گزرتی تھی. لڑائی جھگڑا ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی. لیکن 4 مہینوں میں خصوصیت کے ساتھ لڑتے جھگڑتے نہیں تھے. قبائلی اور آبائلی جنگوں کا سلسلہ بھی اشہر حرم کے آنے پر بند کر دیتے تھے. ان میں کا ایک رجب ہے اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے. جو مہینہ ختم ہو رہا ہے آج اس کی 26 تاریخ ہے. عام وطن رجب المرجب میں آقا کا واقعہ معراج و اسرا بیان کیا جاتا ہے. یہ آقا کا معجزہ ہے. معجزہ دلیل نبوت ہے. مقصد نبوت ہرگز نہیں ہے.
मकासिद अलग चीज है, निशानी और अलामत अलग चीज है। तो आका की नबूवत की अलामत थी, माजिज़ा नबूवत के मकासिद में दाखिल लगी है। आका के माजिज़ात में बड़े बड़े माजिज़ात कुरान करीम, वाक़िया शक्कुल कमर, वाक़िया मेराज बतौर खास जिक्र किए जाते हैं। आज दो मौजिज़े, वाक़िया इसरा व मेराज और आखिर में मौजिज़ा कुरान पर चंद बातें आप हजरात की खिदमत में पेश करेंगे। मौजिज़ा अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हाथ, रसूलों के हाथ खर के आदत अनहोनी चीज होती हुई नजर आ जाए कुदरत की तरफ से, उसको मौजिज़ा कहते हैं। आजिज कर देने वाली, हरा देने वाली चीज, जिस पर इंसान, उसकी साइंस, उसकी टेक्नोलॉजी और सारी कायनात जिसके सामने हार जाए, इसको मौजिज़ा कहा जाता है। हरा देने वाला, आजिज कर देने वाला। मौजिज़ा अंबिया के मुखालिफिन, दुश्मन ताकतें, आदाए इस्लाम और मुस्लिमीन की कम अज कम सरकोबी और इहक़ाक़ हक़ और इब्ताल बातिल के लिए अल्लाह ताला की तरफ से नबी के हाथ अल्लाह ताला मौजिज़ा जाहिर फरमाते हैं। दाखिला तरीके, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ दाहिना हाथ बाई बगल के अंदर डालते और बाहर निकालते तो सूरज की तरह चमकता हुआ हो जाता था। फिर वापस जब बगल में डालते थे तो जैसा हाथ था वैसा हो जाता था। वो लाठी जो फिरौन के मुकाबले में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा का मौजिज़ा दिया था, जिनसे अल्लाह ताला ने हजरत मूसा से पूछा था, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, क़ाल हिय आसाई, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? का लाठी है। अतवक्कउ अलैहा, बकरियां चराते चराते थक जाता हूं तो उस पर टेक लगाता हूं। व अहुश्शु बिहा अला गनमी, बकरियों पर दरख्तों से पत्ते झाड़ करके गिराता हूं, बकरियां खाती है। वली फीहा मआरिब उखरा अतवक्कउ अलैहा व अहुश्शु बिहा अला गनमी, और उसके अलावा मेरे लिए बहुत सारे फायदे हैं। वही सांप, लाठी, कुरान ने उसके 3 सिफात बयान किए। हय्यतुन तसआ, सुअबानुन मुबीन, जाननुन वल्ला मुस्तकबिरन। एक जगह कुरान ने जान कहा, एक जगह सुअबान कहा, एक जगह हय्या कहा। हय्यतुन, सुअबानुन और जाननुन, ये सांपों के नाम है, जानवर सांपों के नाम है। एक सांप को कुरान ने जान कहा, एक जगह सांप का कुरान ने हय्या कहा, एक जगह सांप पर कुरान ने सुअबान कहा। सुअबान अजगर को कहते हैं, जान नाग को कहते हैं, हय्या आम सांप को कहते हैं। तीनों जगह अलग अलग ताबीर कुरान ने क्यों की? वही मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में एक लाठी थी। हजरत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहां मिस्र से मदीन का सफर जब किया था तो 10 साल तक उनके यहां कयाम किया। उनकी 2 बेटियों में से एक से निकाह हुआ और वही लाठी जिनसे हजरत शुएब के यहां बकरियां चराया करते थे, उसी लाठी को अल्लाह ने मौजिज़ा की ताबीर में बदल दिया। लेकिन एक ही लाठी है, 3 अलग अलग करतब दिखाए गए। हजरत मूसा और हारून दोनों भाई हैं, जब वहां पहुंचे फिरौन के दरबार में तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मौजिज़ा दिखाया दलील नबूवत के तौर पर, तो वह अजगर बन गया।
इसने मुंह फाड़ा, ऊपर का जबड़ा फिरौन के महल के ऊपर और नीचे का जबड़ा फिरौन के महल के नीचे। इसको साहबान कहा। इस तरह जाननुन और हैयतुन 72,000 जादूगर हजरत मूसा के मुकाबले में लाठी और रस्सी लेकर आए और मैदान में जादू के जोर से इनको सांप में बदल दिया, यानी लोगों के तखय्युल बांध दिया। अब उसके नतीजे में वो लाठी और रस्सी तखय्युल बांध देने के नतीजे में लोगों की नजर में सांपों से मैदान भर गया। इसको हैयतुन कुरान ने कहा। जाननुन अलग अलग सिफात हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ की इस लाठी के जरिए से खुदावंद कुद्दुस ने जाहिर फरमाए, जो जाहिर के खिलाफ है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, इनके कौम ने जिंदा गाभन उठनी मांगी पहाड़ से। हजरत सालेह ने अल्लाह से दुआ की, जिंदा 10 महीने की गाभन उठनी, जिस माजिजे का तज़किरा कुरान में फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु अक़बाहा। अल्लाह ने कई मकामात पर इस माजिजे का तज़किरा किया है। ये फितरत के खिलाफ है। पत्थर से ऊँटनी जन्म नहीं लेती और वो भी 10 महीने की गाभन। यह माजिजा है। हजरत इब्राहिम के लिए नमरूद की आग का गुलजार हो जाना यह माजिजा है। हजरत ईसा का मट्टी से परिंदे की शक्ल बनाकर फूंक मारकर उड़ता हुआ परिंदा कर देना यह हजरत ईसा का माजिजा है। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार माजिजे दिए गए। सबसे बड़ा माजिजा कुरान, दूसरा बड़ा मौजूदा शक्कुल कमर, उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े हो जाना, और तीसरा बड़ा मौजूदा मेराज। इस वाक़ये को 2 हिस्सों में कुरान ने तकसीम किया है। सूरह बनु इसराइल के आगाज में सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। बड़ी आलीशान है अल्लाह की जात जो अपने बंदे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रातों रात मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा से ले गया मस्जिदुल अक़सा मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस, ताकि अल्लाह ताला अपनी कुदरत की निशानियां दिखलाए। और बड़ा सुनने वाला देखने वाला है। इसमें वाक़या इसरा बयान किया। आप अपने घर में आराम फरमा रहे थे, हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, घर की छत खुल गई और घर की छत से हजरत जिब्रील तशरीफ लाए। पूरा वाकया ही अजीब अंदाज का है, इसलिए कुरान ने सुबहान से ताबीर किया है। सुबहान का तर्जमा कायनात और कायनात की मरकजी तमाम तर मादी ताकतें जहां जवाब दे दे और गैबी ताकत की जहां से शुरुआत हो उस जात को सुबहान कहते हैं। इसलिए हम नमाज भी सुबहानकल्लाहुम्मा से शुरू करते हैं। नमाजी का नमाज के लिए आ जाना यह अल्लाह ताला शानहू के फैसले के बगैर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की शान किबरियाई के लिए अल्लाह के दरबार की हाजिरी अल्लाह के फैसले से होती है। सुब्हानल्लज़ी असरा। आप सोए हुए थे, आपको बेदार किया और आपको उठाकर ले गए मुल्क शाम बैतुल मुक़द्दस, जहां अंबिया की इमामत का शर्फ हासिल हुआ। फिर यहां बुराक बांधा गया और बुराक से जन्नत तक सवारी हुई। 7 आसमान में पहले आसमान पर हजरत आदम, दूसरे पर हजरत ईसा और याहिया, तीसरे पर हजरत इदरीस, चौथे पर हजरत हारून, फिर हजरत मूसा, फिर हजरत इब्राहिम। इन अंबिया की मुलाकात का शर्फ हासिल हुआ। 6 आसमान पर 7 पैगंबर, हजरत आदम, हजरत ईसा और याहिया, हजरत यूसुफ, हजरत इदरीस, हजरत हारून, हजरत मूसा और हजरत इब्राहिम 7वें आसमान पर। फिर यहां से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे और सिदरतुल मुंतहा से आगे यहां तक जिब्रील का साथ रहा।
बुराक का ये सफर जन्नत की सवारी का बैतुल मुकद्दस से लेकर के सिदरा तक, सिदरा पर जिब्रील की परवाज खत्म हो गई। फिर 70,000 नूर के पर्दे हटे। अल्लाह ताला ने अपने नबी को अकेला खलवत में बुलाया, जिब्रील को सिदरा पर ठहरा दिया और तखलिया में अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को यहां ठहरा करके नबी को आगे बुलाया। अब सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, इसको सूरह बनु इसराइल ने जिक्र किया। और फिर बैतुल मुकद्दस से 7 आसमान और सिदरा के आगे 70,000 नूर के पर्दों का हटकर अल्लाह से हम कलामी का शर्फ, इसको वन्नज्मि इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा अल्लमहु शदीदुल क़वा ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى। यहां तक का वाकया इसको मेअराज कहते हैं। इसरा का माना रात का सफर और मेअराज का माना आसमानों का परवाज चढ़ना। सिदरतुल मुंतहा के आगे आका ने जिब्रील को मईयत की सफर में दावत दी। हजरत जिब्रील ने अर्ज किया, इससे आगे मेरा मकाम नहीं है, अगर एक कदम भी मैं आगे बढ़ूं तो मेरे 600 बाजू जो अल्लाह ताला ने मुझे अता किए हैं वो जलकर के राख हो जाएं, इससे आगे आपका मकाम है। 70,000 नूर के पर्दे हटकर अल्लाह ताला ने अपने हबीब से पूछा, कोई मुहीब अपने महबूब से मिलता है तो कुछ नजर नियाज हदीये तोहफे पेश करता है, आप मेरे लिए क्या लाए हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज की, आपकी जात तो वराउल वरा है, आपको क्या जरूरत है? अल्लाहु समद। तो कहा मोहब्बत का उसूल ये है कि कुछ ले दिया जाता है, इससे मोहब्बत में जमाव पैदा होता है। तहाब्बु व तहाद्दू, हदिया लो दो, इससे मोहब्बत पैदा होती है जो जानिबैन से। तो नबी की जुबान पर जारी हुआ, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। ऐ अल्लाह, तमाम कौली इबादतें, तमाम बदनी इबादतें और तमाम फ़ैली इबादतें, जुबान से की जाने वाली, बदन से की जाने वाली, माल से की जाने वाली, ऐ अल्लाह आपके लिए। 3 हलफ नबी ने उठाए, 3 कसमें ली। अल्लाह ताला ने 3 तोहफे दिए। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी, जब आप ये वचन देते हैं, ऐ अल्लाह, जुबान तेरी तारीफ में खुलेगी, बदन तेरी इबादत में मशक्कत बर्दाश्त करेगा, माल तेरे खातिर लगाया जाएगा। अब 3 इनाम आप पर मेरा सलाम हो, आप पर मेरी रहमतें हो, आप पर मेरी बरकतें हो। आका ने इस मौके पर उम्मत को याद करते हुए फरमाया, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। यहां अत्तहिय्यात पूरी हुई। बारी ताला ने अपने नबी को यहां बुलवाकर 3 तोहफे दिए। एक 50 नमाजें, दूसरे नंबर में सूरह बकरा का आखिरी रुकू, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना अव अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमिलतहु अलल लदीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। ये मेराज में मिला। हम कब्रिस्तान जाते हैं,
मैयत को दफनाते हैं तो मौलवी साहब, हाफिज साहब, दफन विधि करने वाला मैयत के पाइते पर खड़ा रहकर, पैर की जगह की तरफ खड़ा रहकर खड़े खड़े ये पढ़ता है। हर मुसलमान सूरह बकरा की आखिर की ये 2 आयतें सोने से पहले पढ़ ले। ये आयतें उसके लिए काफी हो जाएगी। ये 2 आयतें पढ़ ले। इस रात में इंतकाल हो गया तो शहीद मरेगा। बहुत बड़ी आयतें हैं, हर मुसलमान के दिल में होती है। बहुत मुख्तसर रुकू है, इसको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। रात को सोते वक्त सूरह बकरा का आखिरी रुकू ये, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुम्मा अस्लमतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक व अल्जअतु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मल्जा व ला मनजा मिनका इल्ला इलैक। बस ये मुख्तसर दुआ है। फितरत इस्लाम पर आदमी मरेगा। फिर दाहिना हाथ दाहिने करवट गाल के नीचे रख करके किबला रुख सो जाए। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मौत आ गई, इस्लामी फितरत पर मरेगा। कितना मुख्तसर काम है, कितना मुख्तसर काम है। इसको सुन्नत कहा जाता है, जो नबी जी ने प्रैक्टिकल करके बताया। 50 नमाजें मिली। हजरत मूसा से मुलाकात हुई 6ठे आसमान पर रिटर्न में। कहा मुझे एक उम्मत से साबका पड़ा है, आपकी उम्मत इतना नहीं कर सकेगी, मेरी उम्मत नहीं कर सकी थी, कम कराओ। 5 मर्तबा में बार बार 5 नमाजें कम हुई। अब आखिर में 5 बाकी रह गई। हजरत मूसा ने फरमाया वापस जाइए, मेरी उम्मत 3 नहीं पढ़ सकी थी, 2 नहीं पढ़ सकी थी, आपकी उम्मत 5 कैसे पढ़ सकेगी। हजरत मूसा ने अर्ज फरमाया, बारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज फरमाया, अब तो मूसा मुझे शर्म लगती है। फिर 5, लेकिन जो 5 पढ़ेगा उसको 50 का सवाब मिलेगा। 50 नमाज, सूरह बकरा का आखिरी रुकू जो मैंने पढ़ दिया, और इस उम्मत के मुवाहिद के लिए जन्नत यकीनी चीज है, मगफिरत यकीनी चीज। 3 तोहफे लेकर आप वापस आए। आप जिस बिस्तर में आराम फरमा रहे थे, जिब्रील ने आपको बिस्तर से उठाया था, वो बिस्तर अभी गर्म था। इंसान जब बिस्तर में सोता है तो गोदड़ी, चादर, गद्दा गर्म हो जाता है। हमारे जिस्म के अंदर खून की रवानी की वजह से, सांस की हरकत की वजह से अभी वो बिस्तर की गर्माहट बाकी थी, और सपहर में नबी वापस तशरीफ ले आए थे। इसको मेअराज कहते हैं, वाक़िया इसरा व मेअराज। मैंने बहुत ही मुख्तसर अंदाज में 2 अहम सूरतों की इब्तिदाई 2 आयत का इजमाली खाका आपकी खिदमत में पेश किया। वहां से नमाज मिली। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, नमाज मोमिनों की मेअराज। वहां ये तोहफा मिला, इसी नमाज को मुसलमानों के मेअराज कहा। बैनल अब्दी व बैनल कुफ्र तर्कुस सलाह, मुसलमान और काफिर के दरमियान में फर्क नमाज के जरिए से है। अव्वल मा युहासब बिहिल अब्द यौमल क़यामत अस्सलाह, सबसे पहले कयामत में नमाज का सवाल होगा। नमाज ही इस्लाम का ही अहम बुनियादी अरकान खमसा में का एक रुकन है, जो दिन रात में 5 मर्तबा अदा की जाती है। अल्लाह के शाही दरबार में हाजिरी की दावत दी जाती है। 5 मर्तबा मुअज्जिन अजान कहता है और अल्लाह का दरबार सजाया जाता है। इन मस्जिदों को खुशबुओं की धूनी दी जाती है। यह दरबार शहंशाह खुदाबंदी है, इनको खुशबुओं की धूनी देनी चाहिए। नए उम्दा लिबास पहनकर खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर मस्जिद के हाजिरी के वक्त बनाओ सिंगार करके हाजिर हो। जैसे पहली रात के बिया की दुल्हन और दुल्हा शादी के लिए कैसा सजता है, अल्लाह के इस दरबार के लिए नमाजी को ऐसी सजावट करके आने का हुक्म है। अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ, ऐसी सजावट के साथ मस्जिद में हाजिर हो। खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, हर नमाज की हाजिरी के वक्त अपने आप को मुज़य्यन करके, खुशबू लगाकर, मिसवाक करके, वुजू करके, गुस्ल करके, पहली सफ में बैठकर
अल्लाह के रूबरू हाजिर होने का शर्फ हासिल होता है। तो नमाज मिली, मुवाहिद की मगफिरत मिली, तौहीद को जिंदगी के आखिरी सांस तक महफूज रखने के लिए कलिमा तौहीद की मेहनत की जाती है। इसीलिए तालीम, तबलीग और तज़किया है। तालीम का हासिल भी तौहीद, तज़किया का हासिल भी तौहीद और तबलीग का हासिल भी तौहीद। शिर्क की मजम्मत बयान की, कुफ्र का खात्मा कर दिया, ईमान की शमा रोशन कर दी। लिहाजा नमाज मिली, मुवाहिद की मगफिरत मिली, सूरह बकरा का आखिरी रुको मिला। फिर आपने मक्का वालों को बताया, लेकिन मक्का वाले इनकार कर दिए। बल्कि इन्होंने पूछा कि अच्छा बैतुल मुकद्दस गए थे, मस्जिद के दरवाजे कितने थे, ने खिड़कियां कितनी थी? जिनको नहीं मानना था उनके ये सवाल और मेराज के मुसद्दिक अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करार दिए गए। मेरे नबी ने फरमाया बिल्कुल सच्चा है, आमन्ना व सद्दकना। इस मुतबर्रक महीने में जैसे किताबों में लिखा है, आपको इस मेराज और इसरा की मुअजिज़े से सरफराज फरमाया गया। पहली बात का खुलासा ये। दूसरी बात, तालीम, तबलीग और तज़किया। तालीम के लिए दीनी मदरसों का कयाम अमल में आया। इब्तिदाई आफरीनिश आलम से नहीं, मैं खाली आका की बिआसत के बाद मक्कतुल मुकर्रमा के 3 मदरसे और मदीनतुल मुनव्वरा के 4 मदरसे इजमाली तौर पर आपकी खिदमत में पेश कर दूं। चूंकि ये मदरसों के तालीमी साल के इख्तिताम पर जलसों का सीजन है, इसलिए हमारे जहन में ये बात मैं एकदम रासिक कराना चाहता हूं। इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हम सब के आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजिज़ाए कुरान की वजह से अफजलुल अंबिया वल मुरसलीन बनाए गए। मक्कतुल मुकर्रमा, मदीनतुल मुनव्वरा महबत वह्य की वजह से कायनात के सबसे बिलाद मुकर्रमीन में दाखिल हुई। जिब्रील कुरान की वही की वजह से मुअल्लिमुल मलाइका करार दे दिया गया। कायनात की तमाम तर मखलूकात को कुरान की वजह से जीनत हासिल हुई। हाफिज कुरान को इनके कल्ब में कुरान जमा देने की वजह से इसको इज्जत हासिल हुई। हदीस शरीफ में फरमाया, अस्सौम वल कुरान यशफाअन लिसाहिबिही। कुरान सबसे बड़ा सिफारिशी है और रोजा इंसान के लिए सबसे बड़ा सिफारिशी है। कुरान नबी से भी बड़ा सिफारिश करने वाला है। आप सोचेंगे ये कैसे? कुरान हकीकत में नबी से बड़ा शाफे है। कुरान अल्लाह का कलाम है और अल्लाह की सिफत कदीमा है और नबी मखलूक है। तो अल्लाह की सिफत जो हो और जो अल्लाह का कलाम हो, जाहिर बात है वो ऊंचा होगा, और नबी मखलूक होने की हैसियत से अल्लाह की सिफत के मुकाबले में नीचे हुए। क्या ठिकाना हाफिज का कि जिसके बाबत उसका कुरान उसके लिए शाफे है और अपने शाफे को वो अपने कल्ब में जमाए हुए हैं और अपने दिल में लिए हुए। वो कब्र के पेट में भी जाता है, वो महशर के अंदर भी जाएगा, वो बरज़ख के मनाजिल भी तय करेगा, वो कयामत के मैदान से भी साबका पड़ेगा, वो पुल सिरात पर से भी साबका पड़ेगा और हंसते मुंह वो उसको जन्नत में दाखिल कराएगा और उसका दामन छोड़ेगा नहीं जब तक कि उसको पकड़ करके जन्नत में पहुंचा न दे। इन दीनी मदारिस की असल बुनियाद और असास क्या है? इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, हबीब खुदा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग कहते हैं मदरसों की बुनियाद सुफ़ा से पड़ी, गलत है, बिल्कुल गलत है। सबसे पहला इस उम्मत का मदरसा इमामुल अंबिया, ताजदार मदीना, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहर्रिका, ये पहला मदरसा है। इससे पहले कोई मदरसा नहीं। आपकी शख्सियत मुतहर्रिका, चलता फिरता मदरसा। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के बाबत लिखा गया,
चलता फिरता मदरसा था। अनवर शाह कश्मीरी दारुल इल्म देवबंद के कुतुब खाने के सामने खड़ा रह करके कह रहा था, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, अगर दारुल का पूरा कुतुब खाना उस्मानी सुल्तान आफत या नागाहानी मुसीबत में जलकर खाक हो जाए तो कोई फिक्र की बात नहीं, अनवर शाह के सीने में अल्लाह ने सारे उलूम महफूज कर दिए। तो वो शख्सियत मुतहर्रिका मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसी होगी? ये पहला मदरसा था, इस्लाम का अव्वलीन मदरसा। हर मुसलमान याद कर ले, आपकी शख्सियत मुतहर्रिका पहला मदरसा, चलता फिरता मदरसा। फिर मक्कतुल मुकर्रमा में दूसरे नंबर का मदरसा सैयदना अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद, यानी अबू बकर सिद्दीक का मकाम, इसकी खुला बरामदा था जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सहाबाए किराम कुरान पढ़ते पढ़ाते थे। यही मक्का के मुशरिकों को चुभता था। आका की शख्सियत मुतहर्रिका चुभती थी, अबू बकर का मकाम चुभता था। इसलिए मक्का के मुशरिक कहते थे, ए इब्न, तूने अबू बकर को पनाह दी है, इसको समझा दे, यहां से ये मदरसा उठा ले, घर के अंदर जाकर के कुरान पढ़े, वरना तेरा अमान वापस ले ले। इब्न दुगिन्ना ने अबू बकर से कहा करोड़ मर्तबा तेरा अमान तुझे मुबारक, मैं तो इसी तरह कुरान की तिलावत करके रहूंगा। यह मक्कतुल मुकर्रमा में दूसरा मदरसा। मक्कतुल मुकर्रमा में तीसरा मदरसा दार अरकम, जो सुफ़ा पहाड़ के ऊपर था, जहां सहाबाए किराम ने पनाह ली थी। यह मक्कतुल मुकर्रमा का तीसरा मदरसा, जहां देर तक सहाबा पनाह गुज़ीर रहे थे। मक्कतुल मुकर्रमा का चौथा मदरसा शहीद अबी तालिब, जिसमें अल्लाह के नबी ने दावत और इरशाद की बुनियाद पर, तौहीद की दावत की बुनियाद पर मक्का के काफिरों ने, मुशरिकों ने, बेईमानों ने, बगावत पसंदों ने आपको 3 साल जालिमाना कैद बंद में डाल दिया था और अनाज गल्ले से भी आपको महरूम कर दिया था। वो शहीद अबी तालिब। बस ये मक्का के 4 मदरसे याद रखो। आप हिजरत फरमाकर मदीना आ गए, लेकिन मदीना में इस्लाम आका की हिजरत से 3 साल पहले आ गया और 2 साल आपके मदीना आने से पहले मस्जिदें भी बननी शुरू हुई, मदरसे भी बन गए। जब आका हिजरत फरमाकर अपने उम्र शरीफ के 54वें बरस में मदीना तशरीफ लाए, ऐलान नबूवत से पहले 40 साल पूरे कर दिए। ऐलान नबूवत के बाद 13 साल, 53 साल के बाद जब मदीना हिजरत फरमाकर तशरीफ ले गए तो मदीना में इस्लाम 3 साल पहले आ गया। वो भी नबी की मेहनत की बरकत से मीना के खैमों में दावत दी थी और मीना के खैमों की दावत के नतीजे में आज फलस्तीन के मुसलमानों ने फलस्तीन की मुकद्दस सरजमीन पर खान यूनुस के महल्लात के अंदर और जहां जहां इनके खंडरात मकानात तब्दील हो गए, खंडरात में उन्होंने मीना के खेमों की यादें ताजा करवा दी और इन खेमों में 2-2 साल में हजारों की तादाद में हुफ्फाज़ और हाफिज़ा बच्चियां पैदा हुई, हजारों की तादाद में। अजीब अजीब कारगुजारी। अगर आप इस्लामी अरबी न्यूज देखें तो आपको पता चले, और इनके मासूम जख्मी बच्चे बमों की बौछार में कटे हुए हाथ, और इन पर जब प्लास्टर किया जाता है तो कुरान का पूरा रुकू पढ़ते पढ़ते हाथ की सफाई से लेकर प्लास्टर का कांटा कंप्लीट होने तक वो कुरान बच्चा पढ़ रहा है, जबकि हमारे बच्चे तिल मिलाते हैं और जहां बेहोश करने के कोई साधन नहीं है, होश और स्वतंत्र इफाका की हालत के अंदर ये हजरत इस तरह। कल का ताजा मसला है, 4 यतीम बच्चों की एक बूढ़ी दादी, जिनमें 3 बहनें और एक भाई। बहुत दिल दहला देने वाली कारगुजारी। और इन बच्चों ने अपने शहीद बाप की याद करके जो धारे मार करके रो रहा है, अल्लाह अकबर। और ये किसके बच्चे हैं? शहादा के बच्चे हैं, किसी के बाप मां मालूम ही नहीं। और इन कैंपों में ये पनाह गुज़ी। एक कैंप में 150 बच्चियां हाफिजा हुई,
चंद कैंपों में 500 बच्चे हुफाज हुए, हाफिज कुरान। और वो यूं कहते हैं अल कुरान इज्जुल लना, कुरान ही से तो हमें इज्जत मिली है, और कुरान शरफुल लना, कुरान हमारी शराफत है। अल कुरान रबिउ कुलूबिना, कुरान हमारे दिलों की ताजगी। अब हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ ले गए। 2 साल पहले मस्जिद मदरसे बनना शुरू हुए। एक मदरसा बनु जुरैक मस्जिद बनु जुरैक थी। मस्जिद बनु जुरैक जो एक जुरकी इमाम राफे वहां इमाम थे, जुरकी राफे जुरकी, मस्जिद बनी जुरैक मदीनतुल मुनव्वरा की पहली मस्जिद थी, मस्जिद बनी जुरैक, जहां हजरत राफे इब्न काब इब्न राफे जुरकी, काब इब्न राफे जुरकी इस मस्जिद के अंदर इमाम थे और वो मदरसा पढ़ाते थे। मदीना मुनव्वरा की दूसरी अजीम दीनी दरसगाह कूबा थी, जहां हजरत सालिम इमाम थे। मदीना मुनव्वरा की तीसरी दीनी दरसगाह ये खज़मात के महल्लात थे, नक़ीउल खदमात के, जहां 2 सहाबा इमाम थे, हजरत मुसाब इब्न उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। 3 मदरसे हो गए, मस्जिद बनी जुरैक, मस्जिद कूबा, और तीसरे नंबर की ये नक़ीउल खदमात का मदरसा, जहां 2 इमाम थे, हजरत मुसाब इब्न उमर और हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम। और मदीना में सबसे पहला जुमा अल्लाह के पैगंबर के हुक्म से आपकी तशरीफ आवरी से पहले मुसाब इब्न उमर ने पढ़ाया। इनसे पहले अंसारियों ने पढ़ाया था। इनसे पहले काब इब्न लुवै ने जुमे की बुनियाद डाली थी, और काब इब्न लुवै ने आका की बेअसत से 500 साल 60 साल पहले आज के दिन का नाम जुमा रखा था। चौथा मदीनतुल मुनव्वरा का अजीम तरीन दरसगाह सुफ़ा। तो इस्लाम का पहला मदरसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहर्रिका, यह भूल मत करना कि सुफ़ा इस्लाम का पहला मदरसा था। इस्लाम का पहला मदरसा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुतहर्रिका। लिहाजा जो मदरसों से वाबस्तगी नहीं रखता है उसकी वाबस्तगी नबी से नहीं हुई, इसलिए कि अल्लाह का नबी ही पहली शख्सियत मुतहर्रिका थी जो तालीम देती थी। आप ही की तालीम से तो सहाबा तालीम याफ्ता हुई। तो मैंने मक्का के 4 मदरसे गिनवाए। अल्लाह के पैगंबर की शख्सियत मुतहर्रिका 1, अबू बकर सिद्दीक की मस्जिद 2, दार अरकम 3 और शायद अबी तालिब 4, जहां से इस्लाम के अदीम सपूत तालीम के दर्जे के अंदर आगे बढ़े, इल्म यहां से सीखा। मदीना हिजरत के बाद 2 साल पेशतर आपकी आमद से मदीने में इस्लाम आया। पहली मस्जिद बनी जुरैक, फिर मस्जिद कूबा, फिर नक़ीउल खज़मात, और फिर उसके बाद चौथा मदरसा जो बना वो सुफ़ा बना। मस्जिद नबी की जब तामीर हो रही थी, उसी तामीर के साथ साथ सुफ़ा की भी तामीर अमल में आई। हजरत अनस और अबू हुरैरा ये सुफ़ा के होनहार शागिर्दों में से हैं। सुफ़ा का माना चबूतरा, चबूतरा का माना ओटला, आज भी मौजूद है। वहां ओटला ही है, जैसे मस्जिद का बाहर का सहन, और वहां गोल्डन कलर की जाली लगी हुई, बिल्कुल बैत फातिमा और अली के पीछे का हिस्सा है। सैयदा फातिमा और अली का मकान और आका का रोजा भी इसमें मिल चुका है। यह पूरा हिस्सा जहां आका का कब्र अतर है, उसके पीछे वाले हिस्से में हजरत अली और फातिमा का मकान है। तो हजरत अली और फातिमा के मकान का बरामदा ही सुफ़ा है तकरीबन। यहां इस्लाम के अव्वलीन सहाबा, मुहाजिरीन, परदेसी यहां आकर के मुकीम होते थे। हजरत अनस फरमाते हैं, हम इशा की नमाज के बाद हमारा मदरसा शुरू होता और सुबह तक हम मदरसा पढ़ते थे, और हमारी तादाद 70 होती थी या 60 होती थी। पूरी रात मदरसा पढ़ते थे। और ये वो थे जो अंसारे मदीना नहीं थे,
ये बाहर से हिजरत करके आए हुए थे। इसी से साबित हुआ कि मदीना में 4 किस्म के मदरसे चला करते थे, एक बैरूनी तलबा, एक मकामी तलबा, एक लंबे वक्त तक मदरसा पढ़ने वाले और एक मुख्तसर वक्त तक मदरसा पढ़ने वाले। नौ मुस्लिम जो नए नए मुसलमान होते थे वो मुख्तसर वक्त के लिए पढ़ते थे, खाली इस्लामी जरूरी चीजें सीख लेते थे और जरूरी चीजें सीख करके फिर इस पर अमल करके अपनी जिंदगी बनाते थे। 9 मुस्लिम नए नए मुसलमान ये मुख्तसर मदरसा पढ़ते थे। इससे मालूम यह हुआ कि मदरसे के मुंतजिमीन मुख्तसर निसाब मुख्तसर टाइम वालों के लिए बना दे, एक फेरी पकड़ न रखे, 7 साल 9 साल नहीं दे सकता तो आलिम हाफिज नहीं बन सकता, ऐसी बात नहीं। 3 साल लड़कियों के लिए, 5 साल लड़कियों के लिए बहुत हो गए। अच्छा, मदरसे में आलिम कारी हाफिज बनने के बाद पूरे उलूम आका के कल्बे अतहर की तरह और अनवर शाह कश्मीरी की तरह महफूज नहीं हो जाते। एक सलाहियत पैदा हो जाती है कि दुनिया का कोई भी मुश्किल तरीन फन हो, जो ग्रामर, जो मंतिक, जो फलसफा, जो बदी, जो मानी, जो कलाम, जो फिका, जो तफसीर और जो हदीस से और जो फराइज पर मुश्तमिल हो, ये इसको डंके की चोट हल करके रखेगा। अब दुनिया में सारे उलूम इसमें आ गए। इसकी पापा पगली हर इल्म की ग्रामर से होती है, अल्फाबेट से होती है, कलम खड़ियाल से होती है, एबीसी से होती है, इस तरह अलिफ बा ता सा से होती है। तो पहले ग्रामर है, फिर नहव सर्फ, फिर मंतिक, फिर फलसफा, फिर बदी, फिर मानी, फिर कलाम, फिर फिक़ह, फिर हदीस, फिर तफसीर जो असल उलूम, फिर फराइज। ये उलूम पढ़ा करके एक निसाब पूरा किया जाता है। अब हुरैरा फरमाते हैं, हम जो बैरूनी तलबा होते थे ये पूरे मदीने के मेहमान होते थे। नबी जी इशा के बाद तकसीम करते थे, जिसके पास 2 का खाना हो इसमें से 1 को ले जाओ, इसके पास 4 का खाना हो इसमें से 2 को ले जाओ। बारी लगती थी, नबी 10-10 सहाबा ले जाते थे, जबकि घर में खाली जौ। हदीस शरीफ में मा शबिअ आलु मुहम्मदिन मिन यौमैन, लगातार 2 टाइम जिंदगी भर कभी भी नबी को जौ की रोटी पेट भरकर नहीं मिली। नबी जी को 2 टाइम लगातार जौ की रोटी पेट भरकर नहीं मिली। गेहूं का तो कोई तस्वुर नहीं, जौ खाकर तो देख लो, जबड़े छिल जाएंगे, जिसमें गुदाज नहीं होता, भूसाज होता है। और इसके बाज़ाब्ता ऊपर नोक इतनी होती है कि अगर इंसान को काटना हो तो कट जाए, ऐसी नोकदार उसकी धार होती है जौ की। आपने जौ देखा है, गेहूं के खेतर अभी तैयार हुए हैं, सबसे ऊंचा हमक होने वही जौ होता है। सबसे ऊंची ऊंची निंगर जो नजर आती हो वो ब्यारन फेर में वही जो हो जाता है जौ। वो जौ की रोटी मिलती थी। और सहाबा के जमाने में छालनियां नहीं थी, चालनी, लोट चालने की चालनी थी नहीं। तो सहाबा से पूछा कि रोटी कैसे बनाते थे, तो घड़घंटी में आटा चाड़ लेते थे और फिर हाथ में लेकर यूं कर देते थे, जो उड़ना होता उड़ जाता, जो गुदा बाकी रहता उसी को बनाकर खा लेते। उन्हीं की नस्ल अदीनी मदारिस के अंदर परवान चढ़ती है। देख लो, उम्दा मुरग्गन खाने वाले, इनको मदरसे के खाने उतरते नहीं हैं, इनके हाजमे खराब हो जाते हैं। लेकिन यह सुन्नत है, कुल कायनात का खुलासा, अव्वल मदरसा शख्सियत मुतहर्रका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, दीनी मदरसे साल के इख्तिताम पर लोगों की मन्नत समाजत करते हैं, पंपलेट छपवाते हैं, एक उस्ताद पहुंचता है हमको दावत देने के लिए। हम शादियों में, हम सगाइयों में, हम कम्युनल मसाइल में कितने पेश रहते हैं, इतनी दावत तो नहीं चलती। लेकिन आज उम्मत का रुझान मदरसों से बिल्कुल कम होता चला गया, इसलिए सालाना कारकर्दगी की रिपोर्ट में भी हम हाजिर नहीं रहते। कोशिश करनी चाहिए मदरसों के सालाना जलसों में हम एक दिन फारिग करें इलाके के मदरसों के लिए। भाई साल में निजामुल औकात बनाए,
ये परागंदा परवाने करते क्या है? सुबह में 4:30 बजे से रात 10:30 बजे तक उनके निजामुल औकात बंधे हुए हैं। कैसे कैसे कीमती जवाहिर पारे मदरसों से फारिग होकर उम्मत में जाते हैं। अभी हमारे यहां एक बच्चा है, पंजुम पूरा करेगा, हालांकि मैंने उसको 4 महीने तर्जुमा पढ़ाया, तब मुझे तफसीली कैफियत मालूम नहीं हुई। इस घर में 5 भाई बहन है, 2 मदरसे में 3 पढ़ते हैं, बाकी छोटे हैं, 4 भाई 1 बहन। इनकी विधवा मां, बेवा औरत को जो अनाज मिलता है 7,000 रुपये माहाना पर घर के 6 आदमी का गुजारा होता है, फिर भी ये बच्चे पढ़ते हैं। 7,000 में मालदार के घर की चाय का दूध नहीं आता है। यह उम्मत की अमानत होती है। यतामा, यतीम बच्चे, गरीब बच्चे जिनके पास फीस नहीं है वही मदरसों के हवाले होते हैं, इंतजाम नहीं है वही मदरसों के हवाले होते हैं, और उम्मत का सरमाया वसूल करके इन पर लगाया जाता है, इन पर मेहनत की जाती है। मैंने कल ही मेरे 19 बच्चों का जायजा लिया जो श्रीनगर में परसों हाफिज होंगे, सनद मिलेगी। 3 यतीम बच्चे हैं, 12 साल 13 साल, छोटे बच्चे हैं, नाबालिग, 12 साल 13 साल। अब 12-13 साल का बच्चा और पूरा कुरान सीने में महफूज कैसे मुमकिन हो सकता है? और पढ़ते भी हैं ऐसे कि आपको मिस्री लहजे याद आ जाए। ये मदरसों का एक निजाम है, एक कारकर्दगी, उसको देखना चाहिए। इसीलिए नबी जी ने फरमाया उग्दु आलिमन, पहले नंबर में आलिम बन जाओ, मुतअल्लिमन, तालिब इल्म तो बनो, मुहिब्बन, अरे इनसे मोहब्बत तो करो दोनों से, मुस्तौसियन, इनके खैर खा बनो, वला तकुन खामिसा, 4 बनो, 5वां न बनो। साहबा ने पूछा 5वां न बनने से क्या मतलब? क्या इनमें से किसी दुश्मनी और अदावत और बुग़्ज़ मत रखो। एक हाफिज साहब, एक मौलवी साहब को सिर्फ हाफिज और आलिम होने की वजह से आपने एक टाइम का खाना खिला दिया, अल्लाह की इज्जत की कसम हदीस शरीफ में है, उसके सीने में जितने कुरान के हुरूफ याद है, हर हर्फ के बदले में आपको 10-10 नेकी मिलेगी, 10-10 रहमतें उतरेगी और 10-10 गुनाह माफ होंगे। और उसके सीने में कितने हुरूफ है? 3,22,670 हुरूफ है, तो 32,26,700 नेकियां आपको एक दावत पर मिलेगी। और ये किस पर? सिर्फ कुरान पर। इन मदारिस में से ऐलानात हैं काफी। हमारा जामिया दारुल उलूम हसनिया मांगरोल का 57वां जलसा है 22 जनवरी जुमेरात को, जिसमें 13 आलिम फारिग होंगे, 40 हाफिज फारिग होंगे और 13 कारी रशीद साहब तशरीफ लाएंगे। जुमेरात को सुबह में दारुल उलूम के जलसे में पहुंचना है। दूसरा ऐलान जामिया काशिफुल उलूम मुफ्ती दाऊद साहब का, जहां उलमाए किराम, आलिम, कारी, हाफिज की दस्तारबंदी है, जिसमें कारी रशीद साहब तशरीफ ला रहे हैं अजमेरी। दारुल उलूम में भी कारी रशीद साहब ही है, यहां भी। वो बुध के दिन इशा की नमाज के बाद है। एक बोस्तान शाकिरा मदरसा है, जिनका सालाना जलसा 18 जनवरी को मस्तूरात में है, 18 जनवरी जोहर के बाद। श्रीनगर मदरसे का जलसा, सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट रविवार के दिन रखा गया है। 32 निकाह है, लेकिन निकाह को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। मांगरोल और मांगरोल के अतराफ के निकाह आने वाली जुमेरात की सुबह में तैयबा मस्जिद में है। श्रीनगर और श्रीनगर के अतराफ के निकाह वहां मजमे में है। हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सारोदी साहब दारुल उलूम कठोर के शेखुल हदीस, हजरत शेख हनीफ साहब के शागिर्द रशीद और हजरत मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी की तरबियत याफ्ता, वो तशरीफ लाएंगे। सिर्फ जलसा है बुखारी का खत्म हो चुका है, जिसमें 21 आलिम, 19 हाफिज, 14 कारी फारिग होंगे। 7 बच्चे टेलर बने हैं और 2 बच्चे कंप्यूटर कोर्स पूरा किए हैं। पर्चे में आपको डिटेल दे दी है अब तक कितने आलिम, कारी, हाफिज हुए। ये श्रीनगर मदरसे से फारिग होने वाले तलबा का है। आने वाली जुमा, इसके बाद जो जुमा आएगी उसकी इशा की नमाज के बाद तैयबा मस्जिद के पास हाजी सुलेमान साहब के प्लॉट में तैयबा मस्जिद में चलने वाले 5 साल आलिम कोर्स के 8 आलिम, 8 कारी
اور 16 हाफिज का जलसा यहां होगा। फिर इसके बाद जो रविवार आएगी, इसमें जामिया ही के साथ तालिमुद्दीन के उन्वान से ही लड़कियों में 650 लड़कियां जेर तालीम, जिनमें 27 आलिमा और 16 आरिफा फारिग होती है, 3 साल वाली और मुकम्मल आलिम कोर्स वाली। ये सिर्फ जलसा रविवार के दिन, ये आने वाली नहीं रविवार, उसके बाद ये कुल 129 आलिम, कारी, हाफिज, आलिमा, आरिफा फारिग होंगे। 95 आदमी का अमला, 2150 लड़के फारिग होने वाले 129, और सालाना खर्च 2.25 करोड़। आप हजरात की खिदमत में हमने अपना, इस तरह हर मदरसा अपने जलसों के अंदर अपना रिपोर्ट पेश करता है। उम्मत को हमने लड़कियों का मदरसा का 21 से शुरू हुआ, खाली मांगरोल शहर में 70 आलिमा फारिग हुई। ये 27 के समेत अब तक 70 आलिमा प्रॉपर मांगरोल शहर में इसी मदरसा तैयबा से फारिग हुई। 70 आलिमा प्रॉपर इसी शहर में। आप एक अंदाजा लगाइए, एक वक्त में एक आलिम और आलिमा का तस्वुर नहीं हो, और कुछ बेटियां आलिमियत के साथ हिफ्ज़ कुरान भी कर रही है, आलिमा भी बन रही है, हाफिजा भी बन रही है। लिहाजा मदरसों की कदर और कीमत जो हमारे दिलों में है, इसको रासिक और मजबूत रखें, मुमकिन ताउन फरमाएं, और तमाम जलसों के अंदर जान जान कर जरूर पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कई सुनी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।